guys, I welcome you all to the day 185 of our series. And throughout some previous days, we have been learning the causative verbs. We have learned by now make as a causative verb and help. And in today's session, we are going to complete the cases of have as well as get as causative verbs. So let's get started. And you were given the task of translation only. But before we move to the translation part, let's revise this concept a bit. As I have told you earlier that in active case of these causative verbs of have and get, we have to use the structure like have somebody V1, have somebody do something, or get somebody to do something. In case of get, if we are using it in an active structure, you have to use to before your main verb, before your action verb. And in case of passive structure, if we are using have and get as causative verbs, then you have to use some kind of object soon after the usage of these causative verbs, and after that you are supposed to put the third form of the verb. And in case of passive structure, the format of using have as well as get remains the same. So by now I have taught you the usage of active voice as well as passive voice, but we haven't practiced the case of passive voice that much as we did in the case of active one. So in today's session we are going to practice the passive version only, and here are some more examples. I really must have, or you can say get my eyes tested, यानी कि मुझे अपनी आंखें टेस्ट करवा लेनी चाहिए. आप ये नहीं कह सकते that I really check my eyes or test my eyes अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो यहाँ पे I must have or get my eyes tested. We are using third form of the verb here. I'm sure I need glasses. Glasses means we are talking about not sunglasses, we are talking about spectacles here. Spectacles. And one more thing. अगर आपको ये कहना है कि एक चश्मा, तो उसके लिए आप ये नहीं कहोगे that one spectacle. One spectacle. You have to use s in this word, spectacle. आप spectacles ही बोलोगे उसको. अगर आप एक के लिए बोल रहे हो ना, तब भी आपको spectacles ही बोलना है. और आप ये कहोगे that one pair of spectacles. Like proper formal standard English में इसका usage यही होता है, one pair of spectacles. Similarly, one pair of scissors, one pair of pants. But in case of informal one, you can use it in the sentence any way you want. Next one is I got or I had the leak fixed, the leak in the roof fixed. कि छत पे जो लीक था वो करवा दिया है मैंने फिक्स किसी और से. सब्जेक्ट ने खुद ने नहीं किया यहाँ पे. Subject was I here and I didn't fix the roof. I didn't fix the leak in that roof. I got that roof fixed. I got that leak in the roof fixed. So here fixed is third form of the verb. Next one is Bob got or had his teeth whitened. Okay, I think I have taught you this example earlier also. So Bob did not whiten his teeth. He got or he had his teeth whitened. Next one is John got or had his car washed. अगर आप ये कहते हो कि John ने अपनी कार साफ किया, अपनी कार धोई, in that case you can say that John washed his cars. लेकिन अगर आप ये कहते हो कि John ने अपनी कार धुलवाई, किसी सर्विस स्टेशन में या कहीं से भी उसने अपनी कार धुलवाई, in that case you have to go by this formation that he got his car washed. And now here is an exercise for you. You have to rectify these statements. You have to check them whether they are correct or incorrect. If they are incorrect, in that case you are supposed to rectify these statements, and if they are already correct, in that case leave them intact, ऐसे ही छोड़ देना उसको. So have your time
I guess by now you have done it. So the first one is, if you don't get out of my house, I'll have you to arrest. इसको हिंदी में देखिए, अगर आप मेरे घर से बाहर नहीं जाते हो अभी, get out मीन्स आप मेरे घर से दफा नहीं होते हो, अभी बाहर नहीं जाते हो अभी, तो मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी. अब मैं ये नहीं कह सकती मैं आपको अरेस्ट कर लूंगी. अगर मैं किसी पुलिस फोर्स में नहीं हूँ, आर्म्ड फोर्सेस में किसी में भी अगर नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती मैं आपको अरेस्ट कर लूंगी. मैं क्या कहूंगी, मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी. So either you can say that I'll have you, or you can say I'll get you, and you have to remove this to, and after that you have to use third form of the verb, and that is arrested. Okay, D. So I'll get you arrested or I'll have you arrested. और अभी हो सकता है आपको यहाँ पे ये इशू आए कि मैम अभी तो आपने स्ट्रक्चर में बताया था कि समथिंग को ही हम यूज करते हैं पैसिव में. मैक्सिमम केसेस में हम समथिंग को यूज करते हैं क्योंकि someone किसी पर्सन वाले बहुत रेयर केस में होते हैं, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हो. दिस इज लैंग्वेज एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. So I'll have you arrested. Next one is, we are having our house to paint this weekend. So we are having our house painted this weekend. We are having means we are going to have this house painted. ये मीनिंग हो गया इसका. We are having. We can use present continuous tense to denote the near future event. Near future के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो वही है ये. In that case, you have to just remove to and add ed in that verb paint. Next one is, my refrigerator isn't working properly. I need to get it to fix. So I need to get, or I need to have it fixed. You have to remove to from the statement and then add third form of the verb fixed. Last one is, get the kid to dress up fast. We are getting late for the party. And here you will see that we have used a person, the case of a person again. So it is not a binding on you that you have to use only things just after these causative verbs. हाँ, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, तो इस वजह से मैंने वहां पे स्ट्रक्चर में समथिंग लिखा था, बट बहुत रेयर केसेस हैं और उनके दोनों के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिए हैं. इनसे ज्यादा और केसेस आपको नहीं मिलेंगे. आपको मैक्सिमम केसेस में यू विल फाइंड दैट ऑब्जेक्ट्स आर फॉलोइंग दिस कॉजेटिव वर्ब्स. तो देखिए यहाँ पे आते हैं गेट द किड, कि बच्चे को ड्रेस पहना दो जल्दी से. सो गेट द किड ड्रेस्ड अप, गेट द किड ड्रेस्ड अप फास्ट, या have the kid dressed up fast. We are getting late for the party. And now here is your yesterday's task. So now let's come to it. The first one is, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा दूंगा. देखिए दो चीजें हैं. अगर आप ये कहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लूंगा, तो उठा लूंगा, अब इसके भी काफी मीनिंग्स होते हैं. एक उठा लेने का मीनिंग हो जाएगा पिकअप, कि आप कहीं जा रहे हो, उस पर्सन को भी उसी फंक्शन में जाना है, तो आप कहोगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठाते चलूंगा. सो इस केस में आप कहोगे दैट आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर हाउस, कि मैं तुम्हें जाते टाइम रास्ते में तुम्हारे घर से उठा लूंगा या उठा लूंगी, वो हो जाएगा. लेकिन एक इसका मीनिंग ये भी हो जाता है किडनैप. और किडनैप के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं abduction, DION. और अगर हम यही करें abduct, ये वर्ब हो जाएगी उठवा लेने की. तो अब यहाँ देखिए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से, अगर मैं ये कहूँ कि मैं उठा लूंगी, तो ये हो जाएगा I will abduct you, I will kidnap you, ये हो गया. लेकिन अगर मैं उठवा दूंगी, मतलब मैं खुद से नहीं करूंगी, I'll make the other person do the same thing, कि मैं उसको दूसरे पर्सन से करवाऊंगी, तो ये हो जाएगा I will get or have you abducted, and we are using third form of the verb abduct. So I'll have you abducted from your home. And next one is,
मैं तुम्हारा खून करवा दूंगा। अगर ये होता कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगी तो ये हो जाता आई विल मर्डर यू। लेकिन अगर तुम्हारा खून करवा दूंगा किसी और से तो ये हो जाएगा आई विल। अगेन यू कैन राइट ईदर गेट और हैव। You murdered. Murder. You have to use third form of the verb because here the murdered verb is under the effect of get or have. Next one is मैं तुम्हें अपने भाइयों से पिटवा दूंगी तो ये हो जाएगा I will get or have you beaten by my brothers. By my brothers. And next one is कल एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवा दिया। कर दिया नहीं है यहाँ पे, करवा दिया है मतलब किसी और से करवाया है। तो यहाँ पे देखिए टाइम मेंशन किया गया है तो टाइम को आप स्टार्टिंग में रख सकते हो सेंटेंस के, आप सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हो। याद रखना बीच में मत इसको इंक्लूड करना। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में रख रही हूँ टाइम को तो ये हो जाएगा yesterday a wife got or had her husband killed or murdered, जो भी आपका मन करे। Yesterday a wife got her husband killed or a wife had her husband murdered. Next one is मैं इस काम को करवा दूंगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं इस काम को कर दूंगा so I'll do this work. मैं इस काम को करवा दूंगा I'll get this work done. I will get or I will have this work or this task done. Done is the third form. So now let's move to the next exercise. वह अपनी किताब को नहीं छपवा रहा है। छपवा रहा है, छाप रहा है नहीं, छपवा रहा है तो ये हो जाएगा he is not or isn't having रहा। This statement in itself is showing continuity. एक continuity को show कर रहा है ये sentence अपने आप में। That's why we are using ing form of have or get. We are using both of these causative verbs in their ing structure, in their continuous structure. So he isn't, either you can say having or you can use it like getting his book or छपवाना, print and third form would be printed. Published. So this is the correct version. He isn't having or getting his book published. Next one is क्या उसने अपना सूट धुलवा लिया है। खुद से नहीं धोया, धुलवा लिया है। और क्वेश्चन है ये तो ये हो जाएगा क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है ये तो क्या के लिए आप वट लगा दोगे नहीं। ये हम कर चुके हैं कि क्या जब हिंदी में किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आता है इन दैट केस वी हैव टू स्टार्ट दैट सेंटेंस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद अ हेल्पिंग वर्ब। हम वहां पे वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा डिड यू गेट और हैव योर सूट क्लीन्ड। Cleaned or washed, whatever you want to use. Everything that you want to use in case of dhulwa liya is going to be correct. Washed, clean, सब सही है. Next one is मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आंखें चेक करवा लेनी चाहिए. I think you should get or have your eyes checked. I'm writing the spelling again.
एंड नेक्स्ट वन इज मेरी चाबियां गुम हो गई. So first of all I'm clearing the screen. मेरी चाबियां गुम हो गई. My keys are lost. My keys are lost. Or you can also say that I have misplaced my keys. मैंने अपनी चाबियों को कहीं और रख दिया है. Misplace जो अपने exact place पे होनी चाहिए थी उससे कहीं और रख दिया है. Misplace. नेक्स्ट है मुझे नई चाबियां बनवानी पड़ेंगी. अब वो खुद नहीं बना सकता. He has to get some other help. उसको कहीं और से हेल्प लेनी पड़ेगी बाहर से. तो मुझे नई चाबियां बनवानी पड़ेंगी. ये हो जाएगा I will have or get. I'll have or get another keys made. Okay. चाबी बनाना, make a key. और अगर बनवानी पड़ेंगी तो have और get को हमने यूज कर लिया कॉजेटिव में. अब बनाना के लिए तो हम make ही यूज करते हैं ना, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है make, made, made. That's why we have used made here. I will have or I will get another keys made. And the last one is मुझे मेरे नए पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने की जरूरत है. So this would be I need to. देखिए जरूरत है. I need to get or have a photograph taken for my new passport. For my new passport, I need to get or have a photograph taken for my new passport. और अगर आपके लास्ट के ये जो दो सेंटेंसेस हैं फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ में स्पेसिफिकली ये पार्ट अगर आपके ये दोनों भी करेक्ट हुए हैं, दैट मीन्स आप पॉजिटिव वर्ब में आप कभी गलती नहीं करोगे. और अगर आपके करेक्ट नहीं हो पाए हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपको जो भी कंफ्यूजन है आप दोबारा से लेक्चर्स को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. So now let's move forward to the vocabulary part. ये हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं. हम ये कर रहे थे we were studying some nouns that take the fixed preposition after them. So we have done these words already. Now it's time for the new words. The first one is complex. Complex का एक मीनिंग हो जाता है complicated, काफी उलझा हुआ होना, tangled, entangled. लेकिन कॉम्प्लेक्स का एक ये मीनिंग भी हो जाता है किसी चीज को लेके एबनॉर्मल वरी, डर हो जाना किसी चीज को लेके, उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स. डर हो जाना या चिंता, कंसर्न हो जाना, परेशानी हो जाना किसी चीज को लेके. फॉर एग्जाम्पल he has a complex about his nose, कि उसको अपने नोज को लेके काफी एक कॉम्प्लेक्स है, मीन्स काफी वो कंसर्न रहती है, रहता है, वो काफी कंसर्न रहता है अपनी नोज को लेके. सो यहाँ पे द फिक्स्ड प्रपोजिशन विद दिस नाउन इज अबाउट. यू कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स अबाउट समथिंग. किसी चीज को लेके अगर आप चिंता में रहते हो तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इसको आप इस तरह से याद करना, कॉम्प्लेक्स अबाउट जब आप नोट डाउन करोगे समथिंग, कॉम्प्लेक्स अबाउट समथिंग. कॉम्प्लेक्स अबाउट क्लीनिंग मीन्स आपको क्लीनिंग को लेके कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए एक टर्म भी है स्पेसिफिकली OCD जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, द नेक्स्ट वर्ड इज सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मीन्स द रिप्लेसमेंट, अ थिंग that you use or have instead of the one you usually use or have. अक्सर आप जिस चीज को यूज कर रहे हो, आपने आज क्या किया है, उस चीज को ना यूज करके उसकी रिप्लेसमेंट एक आप ले आए हो, तो वो हो जाएगी सब्स्टिट्यूट. फॉर एग्जाम्पल, आप डेली चाय पीते हो, लेकिन आज आपने ये डिसाइड किया है, हो सकता है आपकी चाय खत्म हो गई हो, तो आज आपने ये डिसाइड किया कि चाय नहीं है तो कोई बात नहीं, आज कॉफी ली जाए. इन दैट केस द कॉफी इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर टी. टी के लिए एक सब्स्टिट्यूट की तरह से एक्ट कर रही है कॉफी, और मैंने कहा है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर टी.
अब सब्स्टिट्यूट के बाद में आप हमेशा for को यूज करोगे एज अ फिक्स्ड प्रपोजिशन। आप यहाँ पे of को नहीं यूज कर सकते। You can use honey as a substitute for sugar. अगर आपके पास शुगर नहीं है या आप शुगर नहीं यूज करना चाह रहे, in that case you can use honey. In that case you can replace the sugar content with the honey one. honey से आप उसको replace कर सकते हो। Next one is grudge. grudge होता है नाराजगी, या फिर कई बार ये भी होता है कि कोई चीज आपको पसंद नहीं है, किसी पर्सन में आप डिसलाइक करते हो उसकी किसी क्वालिटी को या पर्सन को ही, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो ग्रज को। अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर समबडी बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव डन टू यू। उन्होंने आपके साथ कुछ किया है, कुछ बुरा किया है और अब आप उनको पसंद नहीं करते, और ये हो जाता है ग्रज। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज डिसकंटेंटमेंट। Discontentment. So he has a grudge against his boss. Actually जो grudge है, this is slightly more negative in its connotation. अपनी connotation में काफी negative है ये, लेकिन discontentment ये actual meaning है नाराजगी का। ये आप अपने किसी loved one को भी बोल सकते हो, discontentment। लेकिन ग्रज ये नेगेटिव हो जाता है। he has a grudge against, और ग्रज के साथ में अगेंस्ट को ही हम यूज करते हैं एज अ फिक्स्ड प्रपोजिशन, his boss। and the next word is involvement, means to getting involved in something, to participating in something। वहां पे आप इसको यूज करते हो, मीनिंग आपको इसका पता होगा। and the fixed preposition after this noun is with। They have some involvement with a number of companies, कि वो बाकी और कंपनीज के साथ में भी, a number of companies के साथ में भी उनका पार्टिसिपेशन है, उनकी पार्टनरशिप है। और अब देखिए involve, involve is the verb and involvement, after adding this suffix meant, this word can be converted into its noun form, involvement। इन्वॉल्व वर्ब से नाउन बनाना है तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। नेक्स्ट है बैन। हमें पता है बैन क्या होता है। बैन के साथ में जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है हमें वो याद करनी है। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस ये है कि वर्ड्स का हमें पता है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज दोज पर्टिकुलर वर्ड्स इन सम काइंड ऑफ प्रॉपर सेंटेंस। तो हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं कि कुछ वर्ड्स जो है वो फिक्स्ड प्रपोजिशन लेते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम अच्छे से किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सिचुएशन में उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। So ban always take on as its preposition. There is a total ban on smoking. Complete ban यानी कि एक रूल है that you are not allowed to do a particular thing. You are forbidden to do that thing. You are prohibited to doing that thing. So next one is control of or over something or somebody. तो कंट्रोल के साथ में ऑफ को भी यूज किया जा सकता है, ओवर को भी यूज किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आप देखोगे, पढ़ोगे, सिर्फ नाउन ही नहीं, नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं यहाँ पे एडजेक्टिव्स रखूंगी, कुछ में फिर वर्ब रखूंगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे शब्दों के साथ में, वर्ड्स के साथ में जो प्रपोजिशन है एक से ज्यादा भी यूज हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे अभी, यू कैन गेन, कीप और लूज कंट्रोल ऑफ समथिंग और समबडी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप किसी के ऊपर अधिकार पा रहे हो, इन दैट केस यू आर गेनिंग द कंट्रोल ओवर दैट थिंग और गेनिंग द कंट्रोल ऑफ दैट थिंग। अगर आपने बनाए रखा है कंट्रोल उसके ऊपर, देखो पा रहे हो मीन्स पहले नहीं था, अभी आपने लिया है कंट्रोल, दैट मीन्स यू हैव गेन्ड द कंट्रोल। अगर आपने बनाए रखा है, यू हैव केप्ट द कंट्रोल। और अगर आपने कंट्रोल खो दिया है, यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल। तो ये तीनों वर्ब्स थी, गेन, कीप एंड लूज कंट्रोल। और इसके बाद में ऑफ समथिंग और समबडी। द आर्मी हैज गेन कंट्रोल ऑफ द सिटी, यानी कि जो आर्मी है उसने सिटी के ऊपर, पूरे के ऊपर कंट्रोल ले लिया है। और इसी तरह से यू कैन ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर समथिंग, ओवर भी आप यूज कर सकते हो, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बोथ मीन्स सिमिलर। सो
The parents have no control over their children, कि parents का अपने बच्चों के ऊपर कोई control नहीं है, have no control over. So now this is gonna be your task, today's task, and here you are supposed to encircle the correct preposition that can be used after a specific noun that is given in the sentence. And in the next exercise, you are again supposed to complete the sentences by filling them with a suitable noun. And you have to search the cases of let also, क्योंकि हम next session में let को complete कर लेंगे as a causative verb. So guys, thanks for listening and just keep practicing.